Today or in this video we are going to discuss practical number 6 of fundamentals of mechatronics, that is prepare a small circuit for door open and close application using different actuators with a PLC. It is a very basic software or basic circuit to apply on a door open and close application. Okay, बहुत सिंपल एक सर्किट बनाना है हमें जो क्या करेगा, डोर को ओपन या क्लोज करेगा ऑटोमेटिकली। तो उसको हम इंटरफेस करेंगे पीएलसी के साथ, और पीएलसी का जो लैडर डायग्राम है, लैडर प्रोग्रामिंग है, उसका यूज करके पीएलसी में एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे जो क्या करेगा, ह्यूमन बींग्स मतलब जो भी एंट्री करना चाहता है डोर से, जैसे ही उसका अराइवल होता है वो डोर को ओपन करेगा, और जब तक वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता पूरी तरह से डोर में से तब तक वो डोर ओपन रहेगा, और जैसे ही वो चला जाता है, वो अराइवल उसका ख़त्म हो जाता है, डोर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए। तो बस यही एप्लीकेशन के लिए हम पीएलसी का यूज़ करके एक लैडर प्रोग्रामिंग भी बनाएंगे और एक्चुअली वर्किंग भी उसका करके देखेंगे पीएलसी को इंटरफेस करके। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में ऑफ कोर्स हमें ये सीखना है कि पीएलसी किस तरह हार्डवेयर उसका इंटरफेस करते हैं, और मेकाट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत है। तो सेम लॉजिक हम डेवलप करेंगे, और लॉजिक का डेवलपमेंट भी कैसे करना है वो भी हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So of course 4 POs are covered in this practical, that is basic knowledge, discipline knowledge, experimental and practice, and engineering tools, right? Afterwards 3 COs are to be covered in this practical, that is use of sensor and different mechatronics application, use of actuator, because we are going to use an sensor and actuator both in this particular application, program a PLC for various applications. So we are going to prepare an application program. Okay, so all these 3 COs are going to be covered in this practical. So practical outcome is to prepare a small circuit for door open close application using different actuators with PLC. तो एक्चुएटर तो हम एक ही यूज़ करने वाले हो, डीसी मोटर, वो देखेंगे हम कैसे करने वाले। मिनिमम थियोरेटिकल नॉलेज जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है, लैडर डायग्राम का प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर कैसे है वर्क करता है वो देखा हमने, ये लैडर डायग्राम कैसे बनाना है वो हमें पता है, हार्डवेयर का कनेक्शन कैसे करना है वो हमें पता है, वो हम बात करेंगे इसी प्रैक्टिकल में। So the basic setup required is PLC, computing device, okay, and you will need a door open close sensor, and you will need a door open close actuation system. Both systems we do possess in our laboratory, so we will continue with this practical. So both connections are to be made as a digital input and digital output, and for programming purpose you will need a computer. So all these resources written over here, as you can see, all these resources are available with us. Let's see what we are going to do. Precautions are to be followed. It is basic precaution. Procedure is also same procedure what we have followed in previous practicals also. Ladder diagram, we have to write down a ladder diagram over here. I will explain that ladder diagram to you in this practical. Resources used, what resources we have used, we have to make a note of that and put it over here. An actual procedure what we have followed, what precautions we have followed, all these observation calculations you can write down here. Okay, you can change the application for the timing according to timing or distance, and you can write it down over here. Okay, so conclusion, what we have observed, you have to interpret that result and you have to write down conclusion also. Some basic questions are asked here, or you can use those answers to those in the space provided in your manual. Okay, so let's go to our actual working or actual connection. So practical number 6, PLC for door open and close application. So interface module, we do possess an interface module in our laboratory where sensors and actuation system required for the door close and open and close application, we have this in module, door open and close module. We need a sensor which can sense the presence of arrival of person. Okay, so we do have this particular sensor. Here we have used inductive type of sensor. So actually ये यूज़ नहीं होना चाहिए इंडक्टिव टाइप ऑफ सेंसर। इंडक्टिव टाइप ऑफ सेंसर सिर्फ मेटल के पार्ट डिटेक्ट कर सकता है। सो इट मीन्स टू नो द अराइवल फॉर दिस सेंसर द पर्सन शुड बी एन आयरन मैन। तो आयरन मैन तो सभी नहीं हो सकते, तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा।
वहाँ पर एक्चुअली सेंसर होना चाहिए ऑप्टिकल सेंसर, बट विथ ऑप्टिकल सेंसर वी हैव टू कीप इट ऑलवेज क्लीन। सो हमने क्या किया यहाँ पर, वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा देर टिकने के लिए ये हमने इंडक्टिव सेंसर यहाँ पर यूज़ किया है। सो इट डजंट चेंज द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन चेंज नहीं करता, बस ये ध्यान में रखिए कि इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव देयर शुड बी एन प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ऑप्टिकल सेंसर विच कैन सेंस द प्रॉक्सिमिटी विदाउट कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट के ऐसा सेंसर चाहिए जो बिना कॉन्टैक्ट के पर्सन के अराइवल को चेक कर सके। तो ये सेंसर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। As you can see the door over here, and to open and close this door we have the DC motor in this area. So this DC motor is connected to this door, and using this DC motor, rotation of this DC motor, we can close and open the door. We have the outputs, that is O0, O1 and O2. Similar way we have the input to the PLC I4, I5 and I6. So in our PLC training kit we are going to use this number of inputs and this number of outputs. So why number of outputs and number of inputs are there? Because as you can see, only one sensor is used and only one actuator is used. So one may ask a question, why number of inputs and why number of outputs are there? As you can see here, indications are also given. There are 3 indicators provided in this module. One is door closing indicator, means when the door is closing this indicator will glow. Then door opening indicator is there, when the door is opening this indicator will show it. And there is a door closing warning indicator is also there, means when the door is opened and then the door will close, in between there is a time to for person to move along the door. वो पर्सन को डोर में से जाने के लिए एक टाइम पीरियड हमें देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे सेंसर ऐसे नहीं लगा सकते कि जैसे ही वो दरवाजे के पास आके खड़ा होना पड़े उसे और बाद में डोर ओपन हो। हमारा एप्लीकेशन कैसे चाहिए, वो नॉर्मली वॉकिंग कर रहा है, जैसे ही वॉकिंग कर रहा है एक थोड़े डिस्टेंस पर होने से पहले उसका डोर ओपन हो जाना चाहिए। तो वो डिस्टेंस हम यहाँ पर दे रहे टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस, और व्हाट वी कैन से to achieve that distance and that timing you will require a timer in the PLC programming. जो PLC का प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं उसमें टाइमर देने वाले हैं, टाइमिंग सेट करने वाले। हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने 5 सेकंड का टाइमर यूज़ किया है। मतलब क्या होगा, जैसे ही पर्सन इस सेंसर के आगे से चला जाएगा, ठीक है, वो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होता है वो डोर से पास हो जाएगा, डोर से अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ से पास होने के बाद जहाँ पर जब सेंसर वर्क हो जाएगा उसके बाद ये डायरेक्टली क्लोज नहीं होना चाहिए। डोर ओपन और क्लोज में एक 5 सेकंड्स का हम क्या दे रहे, गैप दे रहे, तो आदमी को टाइम मिले कि डोर से जाने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिले। वो आप टाइम बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मतलब डोर हमेशा ओपन भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर यूज़ होता है, मॉल पर वगैरह वहाँ पर यूज़ होता है। मॉल में वगैरह जो दुकानें रहती है वहाँ पर एसी शोरूम रहता है, तो वो शोरूम में एसी हमेशा चालू रहता है। सो डोर को हम हमेशा ओपन रखेंगे तो एसी अच्छे से काम नहीं करेगा या उसका यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए डोर का क्लोज होना हमेशा ज़रूरी है, लेकिन वो आदमी के सर पर क्लोज नहीं होना चाहिए, उसको एक टाइम पीरियड मिलना चाहिए उसमें से पास होने के लिए। तो हम 5 सेकंड का टाइम वगैरह दे सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि एक ही मोटर से हम डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हैं। ये सिंगल मोटर डीसी मोटर है, सिंगल मोटर से डोर को ओपन या क्लोज करें। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज भी रोटेट होना चाहिए मोटर और एंटी क्लॉकवाइज भी होना चाहिए। सो वी पुट 2 लिमिट स्विचेस, हम यहाँ पर 2 लिमिट स्विच भी यूज कर रहे हैं, मतलब और 2 सेंसर बढ़ा रहे हैं। तो उस 2 सेंसर का काम क्या है, जैसे ही डोर सेंसर से ये मिला, पीएलसी से क्या मिला, इंस्ट्रक्शन मिला डोर ओपन का, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा और इतना ही क्लॉकवाइज रोटेट होगा जितना डोर ओपनिंग के लिए जरूरत है। जैसे ही डोर ओपन हो गया पूरी तरह से, वो कांटेक्ट तोड़ देगा, लिमिट स्विच क्या कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा और मोटर को रोटेट होने से बचा लेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटेट होने से बचा लेगा। और 5 सेकंड होने के बाद फिर से लिमिट स्विच फिर से क्या होगा, टाइमर अभी बताएगा मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो मोटर ऑन हो जाएगी फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए, और वो तब तक घूमेगी जब तक डोर पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाता। जैसे ही डोर क्लोज हो गया, मोटर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। तो उसको बंद होने के लिए फिर से एक लिमिट स्विच वहाँ पर यूज़ किया है, वो क्या करेगा, फिर से मोटर को बंद कर देगा।
तो दैट्स वाई अभी 3 सेंसर लग गए और इंडिकेटर्स हमारे पास 3 है, तो ये सब काउंट करके हमें 3 आउटपुट और 3 इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। और सबके लिए कॉमन ग्राउंड है, इसके लिए भी अलग से कॉमन ग्राउंड है और इसके लिए अलग से कॉमन ग्राउंड है। यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो पावर का इंडिकेटर है, जैसे इसमें पावर दिस इंटरफेस रिक्वायर्ड सेपरेट पावर, इसको पावर की ज़रूरत है, इसको हम मेंस में से जोड़कर पावर इसको देंगे तो ये इंडिकेटर आपको ऑन हो जाएगा जैसे आप पावर सप्लाई इसको दे देते हैं। ठीक है, आई हैव कि यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ इंटरफेस। इसके बाद कनेक्शन हमें देना है, जैसे जैसे हमने इनपुट जो बोले थे वो इनपुट का हमने कनेक्शन पीएलसी को उसी नंबर को दे दिए इनपुट के, और आउटपुट को दे दिए। तो बस यही कॉमन इंस्ट्रक्शन है। और इसका पावर प्लग भी जोड़ना है, इंटरफेस का पावर प्लग भी जोड़ना है। पीएलसी के साथ जोड़ सकते हो या डायरेक्टली मेंस में कनेक्ट कर सकते हो। पीएलसी तो ऑलरेडी कनेक्टेड है लैन के थ्रू हमारे कंप्यूटर से, और इसको एक सेपरेट पावर केबल है वो मेंस में से आई है, तो इसको भी पावर अलग से मिला हुआ है। तो हमारा ये सारा इंटरफेस हो गया, कनेक्शंस हो गए, सारे कनेक्शन हो गए। उसके बाद देखेंगे प्रोग्राम क्या करना है हमें। सो प्रोग्राम में अभी बोला मैंने कि टाइमर की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइमर यूज हुआ है। एज यू कैन सी दिस टाइमर इज यूज T4 ऑन, टाइम बेस इज 1, रीसेट इज 5 into 1 5 सेकंड्स। तो ये एक्यूमुलेट 5 सेकंड के लिए होगा। इसका मतलब ये B302 जो है हमारा आउटपुट सेंसर का आउटपुट है। जैसे ही सेंसर के सामने से कोई चला जाएगा ये क्लोज हो जाएगा और टाइमर ऑन हो जाएगा, एनेबल बिट ऑन हो जाएगा। और सेंसर यहाँ पर टाइमर को भी ऑन करना चाहिए और सेंसर से हमारा मोटर भी ऑन होना चाहिए। तो ये सारे हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिए, टाइमर का भी ऐड कर दिया है और सेंसर का ऐड कर दिया है। सेंसर और टाइमर दोनों साथ में चालू हो जाएंगे और मोटर को ओपन करने के लिए, मतलब क्लॉकवाइज घूमने के लिए ऑन करने के लिए भी ये चालू हो जाएगा। तो ये एक इनपुट वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा एक टाइमर हमने दिया है पूरे साइकिल के लिए, मतलब ओपन और क्लोज दोनों होने के लिए, दोनों का होने के बाद ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक 10 सेकंड का टाइमर यहाँ पर दिया है, मतलब वो टाइमर भी साथ में चालू हो जाएगा इसके साथ। तो ओपन और क्लोज दोनों का टाइमिंग काउंट करके ये क्या हो जाएगा, 10 सेकंड का एक टाइम डिले उसको हम दे रहे हैं। 10 सेकंड के बाद फिर दूसरा आदमी आएगा तो डोर फिर से ओपन और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक ये है। इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है, ज़्यादा इनपुट हमने दिए, वही बात की मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम 3 सेंसर यूज़ कर रहे हैं। तीनों सेंसर का काम होने के लिए ज़्यादा इनपुट है और 3 इंडिकेटर भी है, उसका वर्क होने के लिए भी हमें 3 आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार हमने ये सारा प्रोग्राम इसका बनाया है। तो इस प्रोग्राम की फाइल में भी आपको भेज दूंगा, यू कैन स्टडी इट मोर। ओके, नाउ वी विल सी द एक्चुअल वर्किंग ऑफ this application, how door is open or closed. Okay, so program as you can see already 3 इंडिकेटर, 3 इनपुट और एक आउटपुट चालू है। हमने कनेक्शन सारे दिए हुए हैं, पीएलसी के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर इनपुट है, इस इनपुट को यहाँ पर से लिया गया है I4, एज यू कैन सी I4, I5, I6 और एक ग्राउंड इनपुट टू पीएलसी। इस तीनों के कनेक्शन हमने यहाँ पर पीएलसी में कनेक्ट किए हैं उसी लोकेशन पर जिस पर ये बोला गया है। इसके बाद है सेंसिंग डोर, ओपनिंग के लिए इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ किया है। ये डोर है, एक्चुअल डोर, और इस डोर को रन करने के लिए यहाँ पर मोटर दिया गया है। ठीक है, और आउटपुट के लिए देख सकते हो आप O0, O1, O2, इस तीनों आउटपुट को हमने यहाँ पर उसी नंबर से कनेक्ट किया है, O0, O1, O2, क्योंकि जो इंटरफेस आता है उस और ग्राउंड का कनेक्शन है। जो इंटरफेस आता है उस इंटरफेस के लिए हमने प्रोग्राम अलग से बनाया है, तो सेम उसको ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इनपुट का अभी देखेंगे, अब इनपुट को भी उसी नंबर पर कनेक्ट किया है, I4, I5 और I6, और ये स्विच सारे एक्सटर्नल को कनेक्ट किए। एज यू कैन सी ये स्विच जो है एक्सटर्नल को कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें एक्सटर्नली इसको इनपुट देना है पीएलसी को, मतलब इंटरफेस के थ्रू देना है लेकिन एक्सटर्नली देना है। अभी देखेंगे कैसे वर्क होता है वो। इंडक्टिव यूज़ है तो उसके थोड़े पास से ये जाना चाहिए। ये मेटल का पार्ट है मान लीजिए, जैसे ये मेटल पार्ट, मतलब ये अराइवल हो गया, ह्यूमन बीइंग का अराइवल हो गया। देखिए ह्यूमन बीइंग का अराइवल हो, वो डोर ओपन हो जाएगा और 5 सेकंड के लिए वो ओपन रहेगा, जब तक ये यहाँ से आदमी डिस्टेंस क्रॉस करके वो पास नहीं हो जाता। ठीक है,
तो उसके लिए हमने 5 सेकंड का उसको डिले दिया है, टाइमर दिया है। अभी ये पूरा साइकिल 10 सेकंड का खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ से पास किया, यहाँ पर आप देख सकते हो डोर ओपनिंग का इंडिकेटर ऑन हो गया और यहाँ पर डोर ओपन हो रहा है। ठीक है, वहाँ से वो खत्म होने के बाद, डोर ओपनिंग का खत्म होने का डोर क्लोजिंग वार्निंग भी आ रहा है। डोर क्लोजिंग वार्निंग आ रहा है मतलब ओपन है लेकिन अब ये बंद होने वाला है जल्दी, ये वार्निंग, ये इंडिकेटर दे रहा है। ये इंडिकेटर 5 सेकंड के लिए चालू रहेगा। जैसे ही 5 सेकंड खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली डोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर डोर क्लोजिंग का इंडिकेटर लगा है। अभी डोर क्लोजिंग का इंडिकेटर लगा है मतलब अभी डोर क्लोज हो रहा है। आप ये देख सकते हो डोर क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस प्रकार ये वर्क होता है। अब फिर से एक बार देखिए हाउ दिस हैपन्स। राइट, सो दिस इज हाउ। बहुत सिंपल है एप्लीकेशन, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, व्हाट्सएप पर दूंगा और टीचमेंट में भी दूंगा, वो आप देख लीजिए प्रोग्रामिंग उसका, और उसका सारा राइटअप आप अपने मैनुअल में लिख लीजिए।